Now, even as Prime Minister lauded the GST reforms and claimed that it will accelerate India's growth story, the opposition is calling the reforms a mere band-aid. Congress attacked Prime Minister Narendra Modi over the GST 2.0 reforms, terming it as Gabbar Singh tax, which they've been saying for a very long time, and a growth-suppressing tax. Meanwhile, a credit war has erupted between the centre and the West Bengal government, as we just pointed out. And TMC Supremo Mamata Banerjee has claimed the credit for many reforms that belong to her government because she says she raised it first. Aam Aadmi Party leader Saurabh Bharadwaj has also criticised the Prime Minister over his address to the nation on Sunday, questioning why there was no mention of the H-1B visa fee hike by the US. The left, on the other hand, has accused the Prime Minister of trying to spin a jumla yet again. The BJP, meanwhile, is hailing the GST 2.0 reform, saying that it will be a game changer and will help boost consumption and self-reliance in the country. The party is all set to launch a nationwide campaign titled GST Savings Festival, starting today till September 29th. Under this special initiative, BJP MPs and workers have been asked to connect with shopkeepers and people in their areas to spread awareness about the benefits of GST. And since morning, many MPs have been going to various marketplaces to speak to shopkeepers. कितना फर्क पड़ा एसी की कीमतों में, टीवी में, लोगों का रिस्पांस कैसा मिला? जो एसी का बेसिक प्राइस होता है उस पर 10% जीएसटी कम हो जाएगा। अब उस पर कम हो चुका है। कम हो तो लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि भाई हम आ रहे हैं खरीदने के लिए, जरा अब तो नहीं, एक हफ्ता पहले ही आनी शुरू हो गई, होना शुरू किया था, तो लोग आ रहे हैं अब खरीदारी आ रहे हैं। So even my idea was also to replace my one of the air conditioner. I was also bargaining and negotiating how further it can be. So clearly, so for the middle class, for the salaried class, it really gives a huge relief when it comes to buying luxury items. So like televisions, someone probably planning to buy 4-wheelers, 2-wheelers, LED TVs, air condition, fridge, washing machine. So all these appliances sector are eventually giving a huge benefit to the pocket, and that saving will perhaps go to celebrate your festive time. So being one, but let's the concern that remains is on the largest investment, which is the FMCG sector, because eventually not everyone going to buy TV, not everyone going to buy air condition, but everyone will definitely buy the product from the FMCG sector, from biscuit to oil packet to everything else. So the supply chain activation may likely take another nearly a week when from the back end the product itself comes on a reduced price of the GST tariff, then it further distributed to wholesale, the supply chain mechanism, and then from these end user demand, when it reaches to the consumers in the market, probably that would then eventually it will come to relief as far as FMCG sector is concerned. For the middle class, for the salaried class, it really gives a huge relief when it comes to buying luxury items. So like televisions, someone probably planning to buy 4-wheelers, 2-wheelers, LED TVs, air condition, fridge, washing machine. So all these appliances sector are eventually giving a huge benefit to the pocket, and that saving will perhaps go to celebrate your festive time. So being one, but let's the concern that remains is on the largest investment, which is the FMCG sector, because eventually राजनीतिक दल हैं जिनका रिकॉर्ड हमेशा विरोध करने वाली नीडल में वहाँ फंसा रहा है, उनको शायद समझ नहीं आ रही है। जयराम जी को मुझे लगता है कि कोई एक कंसल्टिंग कंपनी को हायर करके अपने लिए और अपने लीडर के लिए कुछ नए मुद्दे ढूंढने चाहिए, क्योंकि जो मुद्दा लाते हैं वो तो बैकफायर कर जाता है। प्रधानमंत्री ने कल भी कहा था कि हम नवरात्र का एक तोहफा देने जा रहे हैं, और निश्चित तौर से जो आम जन है, उनकी जो आम ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, डेली यूज़ की चीज़ें होते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं एक भारी छूट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो इससे कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा, और ये त्यौहार का सीज़न चल रहा है, त्यौहार आज से शुरू है, दीपावली भी आएगा, भैया दूज भी आएगा, छठ भी आएगा, इससे भारी लाभ देश की जनता को होने वाली है। ये जो हमारा विकसित भारत का सपना है, उसमें हर एक ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप है। आज से 10 सालों बाद, 20 सालों बाद जब हम पीछे देखेंगे और विकसित भारत की स्टोरी देखेंगे, तो ये जो है कि लैंडमार्क डिसीजंस ये होंगे। तो लोगों के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, जनसाधारण की सुविधा के लिए ये नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स ही हुए हैं जीएसटी में, इनके लिए हम आज आप देख रहे हैं पदयात्रा निकाल रहे हैं, लोगों में ये जागरूकता ला रहे हैं कि ये जो वक्त है आज स्वदेशी बनने का वक्त है। बचत के उत्सव के रूप में हम लोग जो है वो पूरे भारतवर्ष में मनाएं। ये रिफॉर्म भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति देगा। आम उपभोक्ता पर्व और त्योहार को उल्लास और उमंग के साथ
मनाएगा उसकी क्रय पावर बढ़ेगी, बाजार में एक मजबूती आएगी और स्वाभाविक रूप से खपत बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, नए रोजगार का सृजन भी इसके साथ होगा। क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। उनके समय में क्या हालात होते थे, इंस्पेक्टरी राज कांग्रेस के समय में था और इंस्पेक्टर चला जाता था किसी की दुकान पर, किसी के उद्योग में कपड़े उतार लेता था। ये इंस्पेक्टरी राज था। तब भी खड़गे साहब थे, आंखें बंद थी, आंखें तो खुली नहीं थी। और अब उनको ये इस प्रकार की बातें दिखाई दे रही हैं जब मोदी जी ने बड़ा सुधार किया है। कांग्रेस को तो हर चीज में राजनीति नजर आती है। घर नहीं बना पा रहा था, अब ये 10% बचत से पूरा गांव-गांव में अभी सर घर भी बन जाएगा। इसीलिए मैं सर बहुत आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ इस जीएसटी को ले आने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बधाई सर। सर जो ये जीएसटी का अभी जो रिफॉर्म आया है सर, उससे हमारे होटल के रूम्स जो पहले 12% में जीएसटी लगता था, अब सर 5% हो जाएगा, जिससे कि सर डायरेक्ट बेनिफिशियरी हमारा कंज्यूमर ही रहेगा। और सर रेस्टोरेंट में भी रॉ मटेरियल्स का दाम जब घट जाएगा, हम वो अपने कंज्यूमर को पास ऑन कर देंगे। तो सर दोनों ही बहुत लाभदायक रहेगा दोनों के लिए। लोग ज्यादा पैसे लगाएंगे, खर्चा करेंगे। जी सर, मुझे लगता है परचेजिंग पावर भी जो कंज्यूमर है उसका बढ़ जाएगा सर, और वो एंजॉय कर सकेंगे। डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ेगा सर, हम बचत कर सकेंगे, सेविंग्स कर सकेंगे। आज इस जीएसटी बचत उत्सव में आप हमारा यहाँ आया, हमारे लिए बहुत गर्व का बात है। अरुणाचल से आप शुरू कर रहे हैं। मैं मछली का पालन करता हूँ और मेरा छोटा खेती है। जैसा मेरा ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर का दाम भी बहुत कम हो गया अभी ना, तो जैसा आप 12% से 5% में लाया तो उसमें मेरा सामान का दाम कम आ जाएगा। तो उसके बाद मेरा जो मछली का जो पोखरी है उसमें डीजल पंप आता है, सुना इसका भी 12% से 5%। जो बाकी जितना है मछली का दाना ये सब में काफी कम आ गया, 12% से 5% जैसा। और जो स्टेशनरी आइटम है, जो हमारा जो बच्चा लोग के लिए जो पेन कॉपी जो लेता है, 12% से 5% में आ गया। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक समय ऐसा था कि हम लोग बिजनेस करने से, सामान लेने से हर जगह में टैक्स लगता था, अलग अलग टैक्स। जब से जीएसटी आया एक ही टैक्स लगा तो हमें तकलीफ से वो परेशानी नहीं रहा, एक ही टैक्स में अच्छा लगा। और दूसरा जो अभी हमारा जो जरूरत हिसाब से कुछ जैसा अभी जो इंश्योरेंस है इसमें भी 18% से अभी डायरेक्ट 0% कर दिया। तो ये सब चीज बहुत अच्छा लगा। ये आपका ही टीम कर सकता है, ये मुमकिन मोदी है तो मुमकिन यही है। तो इसलिए हम लोग को मैंने बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि सीमेंट में पहले 28% का जीएसटी होता था, तो अब घट के 18% का हो गया सर। इससे मुझे बहुत फायदा हुआ, अब मेरा सेल बहुत बढ़ेगा और कंज्यूमर को भी बहुत फायदा होगा सर। और सर जैसे कि मैं अभी अपना घर बनाने जा रहा हूँ सर, जीएसटी रेट कम होने के कारण मुझे बहुत फायदा होगा। हमें क्वालिटी लगातार इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग अच्छी चीज और यूजर फ्रेंडली चीज पसंद करते हैं। सिर्फ दाम कम होने से लोग लेते ऐसा नहीं है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लगातार क्वालिटी हम इंप्रूव करें। पैकेजिंग का बड़ा महत्व है आजकल। देखिए पहले के जमाने में आयुर्वेद की जो दवाइयां होती थी वो पूरा थैला भर लेकर के साथ जाना पड़ता था, और जहां जाते थे वहां उबालना पड़ता था, फिर उसमें से कुछ ये पियो, फिर पाउडर रहता था। धीरे धीरे उसमें बदल आ गया और एकदम मॉडर्न वे में तो आयुर्वेद बहुत पॉपुलर हो गया। वैसे ही हम जो भी बनाएं उन सब चीजों को हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको पूरी तरह बहुत ही अच्छे पैकेजिंग का भी ध्यान करना पड़ेगा। दूसरा मेरा आग्रह होगा, अब हमने ग्लोबली सबको टारगेट करना चाहिए। भले प्रोडक्ट किसी इलाके की होगी,
ऑनलाइन, जैसा आपने कहा कि उन्होंने ऑनलाइन काफी काम शुरू किया, हमने ऑनलाइन जाना चाहिए, अपनी खुद की प्रोडक्ट तैयार करनी चाहिए। दुनिया में कभी कभी लोग ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं, वो खरीदते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा मेरा आप सबसे आग्रह है, स्वदेशी खरीदेंगे, स्वदेशी बेचेंगे। देखिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तभी जाकर के भारत विकसित भारत बनेगा। और इस मेरा सभी व्यापारियों से आग्रह है कि सबसे पहले हम तय करेंगे, हम विदेशी बेचेंगे नहीं। आप देखिए, अपना माल बिकने ही वाला है। हमारा प्रोडक्ट बिकेगा तो हमारे लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, हमारा रॉ मटेरियल उपयोग में आएगा। और इसलिए अगर एक बार भारत का व्यापारी तय कर ले, दुकानदार तय कर ले कि एक तो मेरे परिवार में हम कुछ विदेशी नहीं लाएंगे, क्योंकि ज्यादा खरीदने की ताकत उसी की है, वो जूते ही बाहर से ले आता है, चश्मे भी बाहर से ले आता है। और दूसरा, हम बेचेंगे नहीं विदेशी। आप देखिए, भारत इतना ताकतवर हो जाएगा, भारत का हर व्यापारी ताकतवर हो जाएगा, हर कंज्यूमर ताकतवर हो जाएगा, हर प्रोडक्शन में ताकत आ जाएगी। और हम अपनी चीजों को प्यार करेंगे तो दुनिया हमारी चीजों को प्यार करेगी। Right. You just saw the meeting of the Prime Minister with some entrepreneurs over there and some people who are running their own businesses, and they were telling the Prime Minister how the GST is going to impact them and their business. And that's when the Prime Minister heard all of them, and after that he also spoke about how people can go online and create their own businesses. He also seems to have met many who are there producers and manufacturers, small businesses, as he increases his focus on Swadeshi.